एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। पंजाब जीके दी एमसीक्यू सीरीज ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗਾ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਹਿੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਸੰਗੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਸਨੇਟ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਈਟਸ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 1। ਨੈਕਸਟ ਸੰਗੋਲ, ਸੰਗੋਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 4। ਸੁਨੇਤ जी की गल करिए, सनेट तो सनेट है जी लुधियाने, तो रोहिड़ा जोड़ा है ये आएगा जी संगरूर। क्लीयर, तो ए का आ जाएगा 3, डी का 1, 3 4 2 1 आंसर आएगा। तो अपना आंसर बन रहा है जी 3 4 2 1 आंसर बनेगा जी सी ऑप्शन। क्लीयर, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਈਟਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਟਡ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਕਬਰ ਵਾਸ ਕਰਾਊਨਡ ਐਟ ਦੀ ਕਲਾਨੌਰ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਲਾਨੌਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਅਕਬਰ ਫੌਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਹੇਮੂ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੇਮੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨ ਈਅਰ 1556। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸੌਟ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਲਾਨੌਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਤੇ ਹੇਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਈਅਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ B 3 ਓਨਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ਼ੂਡ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨਸ ਇਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। थर्ड स्टेटमेंट अपनी इन दी बैटल ऑफ गुरदास नंगल। बैटल याद रखियो जी, बैटल केड़ी है? बैटल है बैटल ऑफ गुरदास नंगल। बंदा सिंह बहादुर डिफीटेड वजीर खान। वजीर खान कौन सी? गवर्नर सीगे सरहंद दे। ठीक है जी, पूछे गई है अपने तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, इस चीज का ध्यान रखियो। चलो जी, आंसर की गल की जाएगी कि बंदा सिंह बहादुर जी के टाइम ते जिहड़ी कैपिटल सी लाहौर सी, तो आंसर है गलत, लाहौर कैपिटल नहीं सी। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਦੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੋਂਗ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਹੈਗੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੱਪੜ ਝਿੜੀ। ठीक है जी, तो आपको करेक्ट पूछी गई है, तो पहली तो तीजी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो आंसर की बनेगा सी ऑप्शन बनेगा 2 ओनली इज करेक्ट। क्लियर है जी? हो जी, इस दे नाल इंफॉर्मेशन कुछ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ नोट डाउन भी करनी है। नोट डाउन ਕਿਹੜੀ इंफॉर्मेशन करनी है? सब तो पहला ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੁਖਲੀਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੁਖਲੀਸਪੁਰ। इसनू ही अगे जाके रीनेम किया जाएगा, इसनू ही क्या जाएगा लोहगढ़ भी किया जाएगा। कद किन्ने साल तक यह सिख स्टेट की कैपिटल रहेगी बंदा सिंह बहादुर जी के टाइम पे? 1710 तो लैके 1715 तक ये कैपिटल रहेगी।
ठीक है जी। तो बैटल याद रखेंगे बैटल ऑफ ਚੱਪੜਚਿੜੀ। बैटल ऑफ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ। ਨੈਕਸਟ बैटल ऑफ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ बैटल ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ बैटल ऑफ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਸੀ? मुगल किंग कौन सी, प्लस तुसी दसना है कि पंजाब दा गवर्नर कौन सी। गवर्नर दसना है ते तुसी मुगल किंग दसना है जदों बैटल हो रही है केड़ी जी? बैटल हो रही है गुरदास नंगल। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अपने तो पूछिया गई ने। टू मुगल ऑफिसर्स, दो मुगल ऑफिसर ने नाम याद रखेंगे, पहला जाकिरिया खान ते लखपत राय ते जाकिरिया खान वर रिस्पॉन्सिबल फॉर छोटा कल्लूकारा। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਲੂਕਾਰਾ ਈਅਰ ਕਿਹੜੇ ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ? 1746 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਕਲੂਕਾਰਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੋ ਮੁਗਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇੰਕਲੂਡਡ ਯੰਗ ਸਿੱਖਸ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਹੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦੀ ਐਨੀਮੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦਾ। ठीक है जी। तो अपने तो पूछा ही गया, अपने तो करैक्ट ही पूछा गया। थोड़ा जा क्वेश्चन है डिफिकल्ट हो सकता है इसका लेवल, पर आप इन्हों डिस्कस करेंगे तो क्लीयर हो जाएगा। करैक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तुम अपने आंसर दस सकते हो। ठीक है जी। देखते हैं जी करैक्ट है तो सब तो पहला जी सब तो अपने माइंड के आएगी वो स्टेटमेंट आनी चाहिए सैकेंड, बुढ़ा दल के यंग सिक्स नहीं सीगे। ठीक है जी। बुढ़ा दल के वो सिख सीगे जिन्हों की उम्र जी सी 40 साल तो उपर हो चुकी सी। तो वो किते ना किते वार दे विच लड़ाई दे विच किस तरह स्ट्रैटेजी होएगी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੇ ਯੰਗ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ईयर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ईयर है, पर लखपत राय भी सही है पर जाकिरिया खान नहीं सीगे इस टाइम ते। तो इस टाइम ते कौन सीगे? यहिया खान सीगे, याद रखेंगे आप। क्लियर। यहिया खान ते लखपत राय वर दी टू मुगल ऑफिसर्स जो छोटा घल्लूघारा लई रिस्पॉन्सिबल सी। नैक्सट कि नवाब कपूर सिंह नूं टाइटल दिता गया सी सुल्तान उल कौम दा। तां इह भी स्टेटमेंट साडी रॉन्ग है, याद रखियो। ठीक है जी। करैक्ट पूछी गई तो करैक्ट साडी स्टेटमेंट इन्हां दे विचों कोई भी स्टेटमेंट इन्हां दे विचों करैक्ट नहीं। तो आंसर की बनेगा डी, आंसर बनेगा नन ऑफ दी अबव। क्लियर। चलो जी इस दे नाल इंपॉर्टेंट किहड़ी आपां याद रखनी चीज़ां, सब तो पहला यहिया खान ते लखपत राय ये सीगे दो मुगल ऑफिसर्स जिहड़े रिस्पॉन्सिबल सीगे फॉर दी छोटा घल्लूघारा। छोटा घल्लूघारा किहड़ी जगह ते होया सी? तो याद रखें कानूवान किहड़ी जगह जी? गुरदासपुर दे कोल कानूवान दे जंगलां दे विच छोटा घल्लूघारा। उस तो बाद बुढ़ा दल वाज दी दो सिक्स हू वर अबव 40 ईयर्स। तो जेडे 40 साल तो उपर दी उम्र दे सी। ठीक है जी। जेड़ा तरुणा दल सीगा आपां याद रखेंगे तरुणा दल दे विच यंग सिख सीगे जेडे की एनिमीज दे नाल लड़नगे। बुढ़ा दल दा की काम सी? स्ट्रैटेजीज बनाणियां। नैक्सट जेड़ा टाइटल सीगा जी सुल्तान उल कौम दा। सुल्तान उल कौम दा जेड़ा टाइटल है एक इन्हां नूं मिलिया सी, ये मिलिया सी जस्सा सिंह आलूवालिया नूं मिलिया सी। किन्ना ने दिता सी? तो याद रखेंगे नवाब कपूर सिंह ने टाइटल दिता सी सुल्तान उल कौम दा किन्हां नूं? जस्सा सिंह आलूवालिया नूं। क्लीयर। तो उन्हां कोले टाइटल नहीं सी पर उन्होंने दिता सी किन्हां नूं? जस्सा सिंह आलूवालिया नूं टाइटल दिता सी। तो इस करके अपनी कोई भी स्टेटमेंट जी है इस क्वेश्चन के करैक्ट नहीं हैगी, सारियां दी सारियां ही इनकरैक्ट ने। जे तुसीं नोट्स दे विच ऐड नहीं हैगी तुहाडी इंफॉर्मेशन तो तुसीं ये इंफॉर्मेशन नूं नोट्स दे विच अपने ऐड जरूर कर लिओ। क्लीयर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह के बारे क्वेश्चन है। तो उन्होंने जो कोट सीगा उन्होंने कोट दे विच अलग अलग कुछ आप कह सकते कि पोस्ट सी, उन्होंने पोस्ट के उपर कौन कौन आप कह सकते कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी, प्राइम मिनिस्टर कौन सी, फॉरेन मिनिस्टर कौन सी, वो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी। थोड़ा लिस्ट 1 दे विच कुछ नेम्स दिते गए ने ते उन्हां दी पोस्ट तुसीं दसनी है किहड़ी सी। लिस्ट 1 दे विच देखदे अपने कोल दीवान भवानीदास, दीवान अमरनाथ, राजा ध्यान सिंह, फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है जी। इन्हां कोल पोस्ट किहड़ी हो सकदियां? कोई एक स्कॉलर ने इन्हां दे विचों, कोई एक ने फाइनेंस मिनिस्टर ने, एक ने फॉरेन मिनिस्टर ते सब और ने एक प्राइम मिनिस्टर भी ने। आपां दसना कि किहड़ी पोस्ट दे उपर महाराजा रणजीत सिंह दे कोट दे विच सी। देखो जी सब तो पहला सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है जी। फकीर अजीजुद्दीन कौन सी? ये सीगे महाराजा रणजीत सिंह जी दे फॉरेन मिनिस्टर।
ਤਾਂ ਡੀ ਦੇ ਆंसर ਲਗਾ ਲਿਓ ਜੀ 3। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਅਮਰਨਾਥ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੀਵਾਨ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣੇਗਾ ਆंसर ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ 2 1 4 3। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है पर तुसी गलत जरूर करोगे, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान नाल पढ़ियो। ठीक है जी। सब तो पहले तो आपां इस क्वेश्चन दे विच इनकरैक्ट पूछा गया, इस चीज़ का ध्यान रखियो, मैं पहला ही दस देना तुहानूं। हुण स्टेटमेंट्स दे उपर चलदे हैं। सुंदर सिंह मजीठिया, जिहड़े सरदार सुंदर सिंह मजीठिया सी, ये सीगे पहले प्रेजिडेंट ऑफ SGPC, पर किवें दे प्रेजिडेंट सीगे? इलैक्टेड। इस चीज़ का ध्यान रखना आपां। SGPC दा की पहले प्रेजिडेंट सी, पहले इलैक्टेड प्रेजिडेंट सी। नैक्सट मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह सीगे जी पहले इलैक्टेड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ SGPC। उस तो बाद जिहड़ी SGPC बनाई गई सी, अकाली मूवमेंट शुरू हुई सी, तां अकाली मूवमेंट दे आपां नूं ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए ने कि ऑब्जेक्टिव सीगा टू लिबरेट द गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महंस। बिल्कुल करैक्ट है। इसी वास्ते तां अकाली मूवमेंट जिहड़ी सी शुरू की गई सी कि जिन्ने भी गुरुद्वारे ने उन्हां दी कंट्रोल जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है एक बॉडी अंडर है, वो बॉडी अगे जाके आपां देखेंगे इवॉल्व होएगी एज ए SGPC। ठीक है जी। चलो आ जाने हूँ इनकरैक्ट पूछा गया। सब तो पहला देखते हैं जी सरदार सुंदर सिंह मजीठिया फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ SGPC, पर फर्स्ट दे विच इलैक्टेड भी पा दिता गया। तो जब इलैक्टेड पा दिता गया तो पहले इलैक्टेड नहीं सी ये। क्लियर। ये पहले इलैक्टेड नहीं सी। मास्टर तारा सिंह की पहले इलैक्टेड वाइस प्रेजिडेंट सी। बिल्कुल करैक्ट स्टेटमेंट है जी कि अकाली मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव सही दिता होया, बिल्कुल सही दिता होया ऑब्जेक्टिव। गुरुद्वारा दी जिहड़ा कंट्रोल है महंता तो लैके एक बॉडी के अंडर आना चाहिए। इनकरैक्ट पूछा गया, तो इनकरैक्ट तो अपने को स्टेटमेंट 1 ही इनकरैक्ट है, तो आंसर की बनेगा ए ऑप्शन बनेगा 1 ओनली इज द इनकरैक्ट। ठीक है जी। हुण इस दे नाल रिलेटेड ही कुछ इंफॉर्मेशन जिहड़ी तुसीं नोट भी करनी है, क्योंकि इस दे उपर ही क्वेश्चन बार-बार पूछे भी जाते हैं। SGPC जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि मूवमेंट जिहड़ी सी अकाली मूवमेंट 1920 के टाइम ते जिहड़ी शुरू हुई सी, उस टाइम SGPC बनाई गई सी। तां इत्थे जे इलैक्शन नहीं सी होए, क्योंकि SGPC दा जिहड़ा एक्ट है अपना 1925 दे विच एक्ट आएगा एक SGPC दा, 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਆਏਗਾ, 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਕਲੀਅਰ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਲੈਕਟਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। दूजी साइड चलते हैं जो वैसे ही तुहानूं पूछ लैन इलैक्टेड नॉन इलैक्टेड किते भी ना पूछा है, सिंपल पूछ लैन SGPC दे पहले प्रेजिडेंट दसो। जो पहले प्रेजिडेंट पूछ लिया जाए तो आंसर अपना हमेशा ही बनेगा सुंदर सिंह मजीठिया। पर जो उत्थे वर्ड स्पैसीफिकली दिता हुआ है इलैक्टेड, तो आंसर बाबा खड़क सिंह होएगा। तो जो पहले वाइस प्रेजिडेंट पूछ लिया जाए इलैक्टेड वर्ड ना हो तो आप याद रखना नाम हरब सिंह अटारी। क्लीयर। तो ये इंफॉर्मेशन है याद रखनी है, क्योंकि जेडे सुंदर सिंह मजीठिया जी सीगे या फिर हरब सिंह अटारी SGPC अजे एक्ट नहीं सी बनया, वो पहला ही स्थापित कर दिए गए थे प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट। पर जो 1925 एक्ट आएगा, 26 इलैक्शन होंगे, तो पहले इलैक्शन जीत कौन रहे हैं? बाबा खड़क सिंह जीत रहे हैं वाइस प्रेजिडेंट के तौर पर, मास्टर तारा सिंह जीत रहे हैं। क्लीयर। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन अपना पैप्सू के रिलेटेड है। पैप्सू का क्वेश्चन है जी जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड पैप्सू इन 1948 कि 1948 के पैप्सू बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। तुसीं कमेंट सैक्शन जरूर दस्यो कि पैप्सू पंजाब दे नाल मर्ज किहड़े साल च होएगी। क्लीयर है जी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इनॉग्रेट किया सी पैप्सू नूं 1948 दे विच। उस तो बाद पैप्सू दी कैपिटल सी पटियाला, पटियाला वाज द कैपिटल ऑफ पैप्सू। नैक्सट टोटल जे विधान सभा सीटां दी गल कीती जाए पैप्सू दीयां तां टोटल 70 सीटां सीगियां पैप्सू विधान सभा दे विच। ते महाराजा यादविंदर सिंह सीगे जी पहले उप राजा प्रमुख ऑफ दी पैप्सू। ते आपां नूं पूछा गया जी करैक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। करिए जी स्टार्ट क्वेश्चन। चलो सब तो पहले गल करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड पैप्सू इन 1948। आंसर रॉन्ग। किरण आना चाहिए, इतने नाम आना चाहिए जी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, नाम याद रखियो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनॉग्रेटेड पैप्सू इन 1948। उस तो बाद की पैप्सू दी कैपिटल पटियाला सी? बिल्कुल करैक्ट है जी, पैप्सू दी कैपिटल पटियाला ही सी। विधान सभा सीटां की 70 सीगियां, 70 दी सीगियां जी। विधान सभा दी इन्हां दी सीटां सीगियां 60 सीटां सीगियां।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗੇ? ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਜੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। इस चीज का ध्यान रखियो, उप पूछा गया है नहीं, राज प्रमुख पूछा गया तो आंसर आएगा महाराजा यादविंदर सिंह जेडे पटियाले दे ने। जो उप राज प्रमुख पूछ लिया गया तो महाराजा जगजीत सिंह जेडे कपूरथले दो ने। क्लियर? तो थर्ड स्टेटमेंट भी अपनी रॉन्ग है, फोर्थ भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, तो सैकेंड ही करेक्ट है, तो करेक्ट ही पूछी गई है। तो आंसर की बनेगा इसका? आंसर बनेगा ए 2 ओनली। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं जी, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आराम नाल आंसर करियो, गलत ना करियो बस। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है पर ट्रिकी क्वेश्चन है। देखते हैं जी, सब तो पहले कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पंजाब हैज टोटल 13 सीट्स इन पार्लियामेंट। क्लियर? उस तो बाद देखो जी, खडूर साहिब इज दी ओनली तहसील इन पंजाब विद नो अर्बन पॉपुलेशन। तो पंजाब दे विच प्रेजिडेंट रूल जिहड़ा है वो 8 बार लगाया गया है। ये है अपनी स्टेटमेंट। थर्ड पूछा की गया, अपने तो पूछा इनकरेक्ट गया, इस चीज़ का भी ध्यान आप रखना है। ठीक है जी, इनकरेक्ट पूछा गया। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहली स्टेटमेंट, पंजाब हैज 13 सीट्स इन पार्लीमेंट। हुण पार्लीमेंट दे विच की आंदा? राज्य सभा भी आएगा, लोक सभा भी आएगा, पर पंजाब दियां तां 13 सीटां जिहड़ियां ने लोक सभा दियां ने, राज्य सभा दियां तां 7 ने। तो जे पार्लीमेंट की गल की जाएगी तो इत्थे 13 सीट्स नहीं आनी चाहिए, इत्थे कितनी आनी चाहिए सी? इत्थे आनी चाहिए सी 20 सीट्स। पार्लीमेंट दे विच पंजाब दी 20 सीट्स ने, 20 मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने पंजाब दे। क्लीयर? तो पहली स्टेटमेंट अपनी होगी जी रॉन्ग कि खडूर साहब ओनली तहसील है पंजाब दी जिहदे विच कोई अर्बन पॉपुलेशन नहीं, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पंजाब दे विच की प्रेजिडेंट रूल 8 बार लग्या होया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछा गया सी, तो इनकरेक्ट अपनी सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट है, तो आंसर की बनेगा जी सी। आंसर बनेगा ओनली 1 सी। क्लियर है जी? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने तो स्टेटमेंट करेक्ट पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट है जी अपनी, नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। ध्यान रखियो थोड़ा जा स्टेटमेंट का, इन पंजाब पूछा गया। नेक्स्ट वीट, ग्राम, बारले आदि रबी क्रॉप्स। उस तो बाद जी पंजाब दे विच मैक्सिमम ग्रोन क्रॉप इन पंजाब इज राइस, कि पंजाब च सब तो ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन होंदी है। तो पूछा गया अपने तो गया करेक्ट ही पूछा गया, तो आप करेक्ट का ही आंसर देना है। पहली स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब जो भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर दोनों की लगाना चाहिए उत्थे MS रंधावा। ठीक है जी, नॉर्मन बोरलॉग आप लिखते हैं इन्होंने बारे कि ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। जे इंडिया की गल कर ली तो कितने आप देखते हैं कि MS स्वामीनाथन, पंजाब की गल कर ली MS रंधावा। ठीक है जी, ता करके अपनी स्टेटमेंट थोड़ी जी वेग हो जाती है। आप इस करके फर्स्ट स्टेटमेंट साडी होगी रॉन्ग कि वीट, ग्राम, बारले, रबी क्रॉप्स ने बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जी। उस तो बाद मैक्सिमम ग्रोन क्रॉप इन पंजाब इज राइस, रॉन्ग। पंजाब दी सब तो ज़्यादा किहड़ी क्रॉप दी आप कह सकते कल्टीवेशन होंदी है, वो है वीट। ठीक है जी, कणक दी कल्टीवेशन ज़्यादा है, राइस दी कल्टीवेशन घट है। तो थर्ड स्टेटमेंट साडी होगी रॉन्ग। करेक्ट पूछी गई है स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है। आंसर बनेगा जी 2 ओनली। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप यार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट द पंजाब। ये 2 बुक्स ने रिटन बाय द लाला लाजपत राय। ठीक है जी, उस तो बाद पंजाब दी नाइटिंगेल ऑफ पंजाब किन्हां नूं किया जाता है? सुरिंदर कौर जी नूं किया जाता है। कमलजीत संधू, नाम याद रखियो जी, वेरी इंपॉर्टेंट। कमलजीत कौर संधू फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन गोल्ड मेडल। कितने जी गोल्ड मेडल जीते इन्होंने? एशियन गेम्स दे विच। क्लियर? तो क्वेश्चन अपन पूछ लिया कि इन्हां दे विचों किहड़ी इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछी गई है। तुसी सारे आंसर कर सकते हो, फिर आप इन्हू डिस्कस करते हैं। सब तो पहली स्टेटमेंट, अनहैप्पी इंडिया ते द पंजाब बुक्स रिटन बाय लाला लाजपत राय। पंजाब दी नाइटिंगेल ऑफ पंजाब सुरिंदर कौर जी नूं किया जाता है। तो कमलजीत कौर संधू जिहड़े ने, कमलजीत कौर संधू फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स। करिए जी डिस्कस। दे लो इनकरेक्ट की गल की गई है, तो इन्होंने विचों कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। आंसर क्या आएगा? डी, नन ऑफ दी अबव। सारियां स्टेटमेंट्स करेक्ट ने। जे तुहाडे नोट्स दे विच पंजाब जीके वाले ये नोट डाउन ने तो चंगी गल है, जे नहीं तो इसनूं नोट जरूर कर लिओ। पंजाब दी नाइटिंगेल ऑफ पंजाब सुरिंदर कौर जी नूं किया जाता है। कमलजीत कौर संधू, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। कमलजीत कौर संधू फर्स्ट इंडियन वीमेन ने जिन्हां ने गोल्ड मेडल जितया सी एशियन गेम्स दे विच।
क्लियर। उस तो बाद दो बुक्स ने जी अनहैप्पी इंडिया ते द पंजाब, ये दोनों बुक्स इन्होंने लिखी हुई ने लाला लाजपत राय जी ने ही लिखियां ने। क्लियर। चलो जी ये तुसी इमेज देख सकते हो, इन्हें जी सेंटर दे विच खड़े कमलजीत कौर संधू, इन्होंने 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਮਨ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ MCQs। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫੈਕਟ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।